So, but actually, the Word of God is very important for our Christian life. लेकिन हमारे मसीह जीवन के लिए परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। Hallelujah. So, first thing we confessed and prayed and said to God like this, Lord, let my faith please you. तो पहली चीज हमने कबूली देके परमेश्वर को ऐसे कहा कि परमेश्वर मेरा विश्वास तुझे संतुष्ट करे प्रभु। So, let this be always your prayer, in your personal prayer. Ask God now and then, Lord, do my faith is pleasing you. तो हमेशा आपके निजी प्रार्थना में हमेशा परमेश्वर को पूछते रहिए कि परमेश्वर क्या मेरा विश्वास तुझे संतुष्टि दे रहा है। So that will make you to understand how much you are really give up in your faith. और वही आपको समझाएगा कि आपके विश्वास में आप कितने बढ़ चुके हैं। So first session we have seen what should be our faith in Jesus. तो पहले सत्र में हमने देखा कि यीशु मसीह में हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। So this is what God is expecting us to become. और परमेश्वर हम ऐसे बने, ऐसी उसकी अपेक्षा है। He is not expecting us to become like a great personality of the old covenant. और वो पुराने करार के हम बड़े व्यक्तिमत्व की तरह बने, ऐसी उसकी अपेक्षा नहीं है। He wants us to become His children. वो चाहता है कि हम उसके बच्चे बने। So that should be our main center of the faith. और हमारे विश्वास का यही एक केंद्र होना चाहिए। So when we have that faith and when we grow in that faith, और जब I हमारा tell you, the powers of this world cannot do anything to us. जब हमारा ऐसा विश्वास होता है, ऐसी विश्वास में हम बढ़ते हैं, तो मैं आपको बताता हूं, इस दुनिया की कोई भी ताकत हमारे विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती। Amen. Hallelujah. Because the creation is waiting for us. क्योंकि सृष्टि हमारा इंतजार कर रही What है। the world can do, world cannot do anything ये to दुनिया us. कुछ भी नहीं कर सकती, वो हमारे विरुद्ध क्या करेगी। So this year, let your prayer be like this. तो ये साल आपकी प्रार्थना ऐसे होने दो। As we come here on January month, let this first month of the year have this prayer in your spirit that Lord, let me become a true child of God. तो जैसे हम जनवरी के महीने में है, इस पहले महीने में आपकी प्रार्थना ऐसे होने दीजिए कि परमेश्वर मैं तेरा सच्चा बच्चा बन पाऊं परमेश्वर। Other than that, उसके अलावा sometimes may take us away from Jesus. कई बार कुछ चीजें हमें यीशु मसीह से अलग ले जा सकती है। And we may fool ourselves. और हम अपने आप को मूर्ख बना सकते हैं। So that's why this faith और will इसलिए make you to be a great person for the kingdom of God. और इसलिए ये विश्वास आपको परमेश्वर के राज के लिए एक महान व्यक्ति बनाएगा। Okay, now when we grow in faith, और अब जब हम विश्वास में बढ़ते हैं, the eyes of Jesus are on you. तो यीशु की आंखें आपके ऊपर, आपके इर्द गिर्द होती है। So that is what now we are going to learn. और उसी के ऊपर अभी हम लोग सीखने वाले His हैं। eyes are on the faith people. उसकी जो आंखें हैं वो विश्वास के लोगों के ऊपर है। When we grow in a faith जब हम विश्वास में बढ़ते हैं as the children of God, परमेश्वर के बच्चे के स्वरूप में, we are drawing the attention of Jesus towards us. तो हम यीशु के उस लक्ष्य को हमारी ओर खींचते हैं। Hallelujah. Did you understand? क्या आप समझ गए? ನಾವು ಸರಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುವ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೆ, ದೇವರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಡುವಂತೆ ನಾವು ಆತನ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ತಿರ್ಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. So that thing in this session I want to speak to you. तो इस सत्र में मैं ये चीज आपसे बात करना चाहता हूँ। Okay, clear? What we learned in the morning? सुबह हमने क्या सीखा? What is our faith? हमारा विश्वास क्या To है? become the children of God. परमेश्वर के बच्चे बनना, ये हमारा विश्वास That है। is our faith. ये हमारा विश्वास And now है। what we are going to learn? और अब हम क्या सीखने वाले हैं? How Jesus will pay the attention on the faith people. और यीशु विश्वास के लोगों के ऊपर अपना लक्ष्य कैसे लगाता है? So he in the kingdom of God, परमेश्वर के राज में our physical worthiness is not counted. हमारी जो शारीरिक योग्यता है उसको गिना नहीं चाहता। No, it is not counted at all. नहीं, उसको बिल्कुल भी गिना नहीं चाहता। In the kingdom of God, परमेश्वर के राज में our faith is counted. हमारा विश्वास गिना जाता है। Hallelujah. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ ತೋರುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಳಿಸಿರುವಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಬರಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆನೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋದು. Okay? So now in the Gospel of Luke, many times this word is repeated.
और लूका के शुभ वर्तमान में ये वचन बार बार आया है। Then he lifted his eyes and saw. और तब उसने अपने आंखें ऊपर उठा के उनको देखा। About Jesus. यीशु के बारे में लिखा है। ಹಾಗೆ ಆತನ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಿದನು ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಲೂಕ ಬರೋ ಸುವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಲ ಬರ್ತದೆ. See, one truth you should understand. एक सत्य आपको समझना है। A true servant of God who is with the word, और जो सच्चा परमेश्वर का सेवक जो वचन के साथ है, he will not take you only for one particular reference. वो सिर्फ तुम्हें एक खास वचन के ऊपर नहीं लेके He will जाएगा, give the whole book to you. बल्कि वो तुम्हें पूर्ण किताब तुम्हें दे देगा। Why is like that? ऐसे क्यों है? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಜವಾದ ಸೇವಕರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನ್ಸುವಾಗ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಂಗೆ ಯಾಕೆ? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್? ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕ? ಹಾಂ ಹೇಳ್ಮಾ, ಬರಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಸೇವಕರು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರುವವರು ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್? ಮೋಶೆ, ಆರೋನ, ಮೋಸಸ್, ಆರೋನ, ದೇವದೂತರು, ದೇವರು. ಈ ನಾಲ್ಕು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, और जैसे मैंने सुबह कहा अबाउट एक्सोडस, निर्गमन के बारे में, एक्सोडस इज अ बुक ऑफ मिरेकल्स. निर्गमन एक चमत्कारों का किताब है। God is doing miracle for his people. परमेश्वर अपने लोगों के लिए चमत्कार कर रहा है। 4 people I have said. और मैंने 4 लोगों के बारे में God, कहा, angels of God, Moses, परमेश्वर, Lamb. परमेश्वर का दूत मूसा और अहरोन। Only keep this much and read, you will understand whole book. सिर्फ ये ध्यान में रख के आप पूरा किताब पढ़ोगे तो उसे पूरी तरह समझ जाओगे। So the true preacher, तो जो सच्चा प्रचारक है, he will give you the understanding of the whole thing. वो पूरे चीज का तुम्हें समझ दे देता है। Why like this? ऐसे क्यों? The reason, इसका कारण ये है, Bible is not, when Bible they composed, और जब बाइबल उन्होंने जब बनाया, it was not in chapters, it was not in verse. तभी वो कोई ऐसे चैप्टर में या वचनों में ऐसे विभाजन It नहीं was किया only था। books. वो सिर्फ किताबें थी। ಮೊದಲು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಪರ್ಶಿದಾಗ ಅವಾಗ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನು ವಚನಗಳಿಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ಪೂರ್ತಿ ಪುಸ್ತಕನೇ. ಈಗ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇ ಬೈಬಲ್. ಸೊ that's how we should understand the word of God. और इसी तरह हमें परमेश्वर के वचन को समझना होगा। So now as I said in the morning, तो जैसे मैंने सुबह कहा about the book of Exodus, निर्गमन की किताब के बारे now में, coming to the Luke, और अब हम लूका की किताब पे whole आएंगे। Luke gospel we are going to see now. पूरा लूक का किताब, वो पूरा शुभ वर्तमान अभी हम देखेंगे। क्लियर है? सेवा करने वाले कौन कौन सेवा के लिए जाते हैं? वो ऑल हेल्प इन द मिनिस्ट्री. कौन कौन सेवकाई में मदद करते हैं, सेवा के लिए जाते इधर हैं? कौन कौन मदद करते हैं? Raise up your hands. Okay, this is very important. You should know whole thing. तो आपको पूरी चीज जाननी होगी, That will make you to understand the center point of it. और उसके द्वारा ही आप उसका केंद्र बिंदु आप समझ पाएंगे। So the Gospel of Luke तो लूका का जो शुभ वर्तमान है, very clearly says one important thing. और उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज वो कहता है, Jesus looking into the people's life. यीशु लोगों के जीवन में देख रहा था। Okay, ಆತನು ಜನರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡೋದು. ಆದರೆ ಆತನ ಜನರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದಾನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದವರು ನೋಡ್ಯಾನ. when his eyesight, when he lifted eyes and saw means, और जब he उसने saw only the faith people. और उसने जब अपने आंखें उठा के देखा, मतलब उसने सिर्फ विश्वास की लोगों की ओर देखा। So now I will be telling you, keep on writing now. और अभी मैं give the आपको references. बताते जाता हूँ, आप वचन को लिखते जाइए। Okay, chapter 5 5वां अध्याय verse 2, दूसरा वचन, chapter 5 5वां अध्याय verse 20. 20वां वचन, Okay, chapter 5 verse 2, 5वां अध्याय दूसरा chapter वचन, 5 verse 20, 5वां अध्याय 20वां वचन, chapter 19 chapter 19 verse 5, 19 का 5, chapter 19 verse 10. 19 का 10। Okay, so how many references happened?
4 references happened, no? 4 वचन हुए Chapter 5, chapter 5 was 11 also. और 5 का 11 भी है, Chapter 11, लूका का chapter 5 was 11. 5 का 11, Chapter 5 was 20. 5 का 20, Chapter 5 was 2. 5 का 2, Chapter 7 was 10. 7 का 10, 10 onwards. Okay. So how many now? 7, 6. One more is there. Chapter 21 was 2. और 21वां अध्याय उसका दूसरा वचन. Okay. So can I repeat once again? Chapter 5 was 2. Chapter 5 was 11. Chapter 5 was 20. 19:5. We'll come series. 19. Chapter 19 was 5. Chapter 19 was 10. And chapter 7 was 10. Chapter 21 2. Hallelujah. Listen carefully now. अभी आप सावधानी से सुनिए. अभी इसमें क्या है मैं बताता हूँ आपको. Because we are in the closing session. So reading and scripture, after that you can read. और इसके बाद आप घर जाके इसे पढ़ सकते हैं. Now chapter 5 verse 2 says like this. 5 का 2 ऐसे कहता है. Jesus was walking at the sea of Gennesaret. और यीशु गनेसरेत के उस सी के पास जा He रहा lifted his था. eyes and saw 2 boats. और उसने अपनी आंखें उठाकर 2 बोट की ओर And देखा. went in and enter into the boat of Peter. और वो पतरस की उस जहाज में उसने प्रवेश किया. Why not other boat? दूसरी बोट में क्यों नहीं? Why in this boat? इसी जहाज में क्यों? The story says like this. क्योंकि एक कहानी ऐसे कहती है. Peter said in verse 5. पतरस ने 5वें वचन में ऐसे Whole कहा, night I tried. पूरी रात मैंने कोशिश But की, now because of your word, लेकिन अब तुम्हारे वचन की वजह से I will put my net. मैं मेरे जाले को डालता हूँ. Hallelujah. The moment when your faith rises, और जिस क्षण आपका विश्वास बढ़ जाता है, you are there in the eyes of Jesus. तो आप यीशु की आंखों में आ जाते हैं. आमेन, आमेन. Whenever you say ready Lord, I am ready to obey you. और जब कभी आप कहते हो कि हाँ परमेश्वर मैं आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूँ, People may not understand you, तो लोग शायद तुम्हें नहीं समझेंगे, but the eyes of Jesus are on you. लेकिन यीशु की आंखें तुम्हारे ऊपर आ जाएंगी. आमेन, आमेन. Hallelujah. Maybe you are in the corner somewhere praying. शायद तुम किसी कोने में प्रार्थना कर रहे होंगे, Nobody is seeing you. कोई भी तुम्हें नहीं देख रहा है. There your faith is raised. वहां पे तुम्हारा विश्वास बढ़ जाता है Immediately you are in the eyes of Jesus. और तुरंत ही तुम यीशु की आंखों में आते हो. Hallelujah. So then your faith makes Jesus to enter in your life. और फिर आपका विश्वास ही आपको यीशु को आपके जीवन में लाता है. Hallelujah. हालेलुया. He entered into Peter's boat और उसने पतरस की नाव में उसने प्रवेश किया and said like this, और उसने ऐसे कहा, push little, थोड़ा सा आगे धक्का दो. and he shared the word. और फिर उसने वचन बांटा. Yes or no? So after sharing the word, और वचन बांटने के बाद take little more deep, फिर उसने कहा और थोड़ा सा गहराई में then लेके put चलो. your net. फिर जाला डाल दो. Peter is talking like this, पतरस ऐसे बात कर रहा था, Master, मालिक I tried whole night, मैंने पूरी रात मैंने कोशिश की है, but now लेकिन अब I believe in your word, मैं तेरे वचन पे विश्वास and करता I हूँ put the net. और मैं जाला डालता That हूँ. means इसका मतलब when Jesus was ministering to the people, जब यीशु लोगों से बात कर रहा था, Peter was listening. तब पतरस उसे सुन रहा था. That time his faith increased. और तब उसका विश्वास बढ़ गया. While he was preaching, और जब वो प्रचार कर रहा Peter था, was listening. तब पतरस सुन रहा था His preaching is different. कि इसका प्रचार अलग है. He's not like rabbis. वो रब्बी लोगों की तरह नहीं He's है. very different. ये बहुत ही अलग है. Now let me obey this man. अब मैं इसकी आज्ञा पालन करने दो. Hallelujah. You're understanding? क्या आप So समझ रहे that's हो? why he said, Master, और इसलिए उसने कहा, मालिक I will put the net in your name, by your word. आपके वचनों के वजह से मैं इस जाले को डालता हूँ. When he said master, जब उसने मालिक ऐसे कहा, he believed that Jesus is a religious leader. और तब उसका विश्वास था कि यीशु एक धर्म का गुरु है. He is a preacher. वो एक प्रचारक है. He is a rabbi. वो एक धर्म गुरु है. So there is a faith of the people to believe in the word of rabbi. तो लोगों का ऐसा विश्वास था कि ऐसे धर्म गुरु के वचनों पे विश्वास रखना. You understanding? क्या आप समझ रहे हो? That is the reason he said like this. और
उसी कारण से उसने ऐसे कहा, I believe in your word मैं तेरे वचन पे विश्वास करता because हूँ, you are not ordinary man. क्योंकि तू कुछ साधारण व्यक्ति While नहीं you are है। preaching to the people, जब तू लोगों से प्रचार कर रहा था, I can see there is a life in you. तो मैं देख पा रहा था कि तेरे अंदर जीवन है प्रभु। Hallelujah. As I'm listening to you, जैसे मैं तुझसे सुन रहा हूँ, as I'm hearing to you, जैसे मैं तुझसे सुन रहा my हूँ, faith increased. मेरा विश्वास बढ़ गया, That's why I put my net. और इसीलिए मैंने मेरा जाला डाला। This much you understood? इतना आप समझ गए? Then what happened? फिर क्या हुआ? When they put the net, जब उसने जाले को डाला, बोलो ये नहीं तो कितना आया? बहुत सारा, गिन नहीं सकता। The fruit of the faith nobody can count. और जो विश्वास का फल है उसे कोई भी गिनती नहीं कर सकता। आमीन। This same Peter और यही पतरस in the Gospel of John, यूहन्ना के सुसमाचार when he में was backslidden, जब वो परमेश्वर से दूर गया था, when he has put the net, जब उसने जाला डाला, that time he got the fish, उस समय उसे मछली मिली, 153. लेकिन वो 153 थी। You understanding? क्या आप समझ रहे हो? First, countless, और पहले जो था वो अगणित था, because that is a fruit of faith. क्योंकि वो विश्वास का फल था। Second time, दूसरी बार is backslidden. वो परमेश्वर से दूर गया था, Jesus only forcibly came there. और यीशु ही वहां से दबाव स्वरूप वहां पे आया था, And this time number counting. और इस बार तो संख्या गिननी पड़ी। Backsliding will reduce our number. जो परमेश्वर से दूर जाने की वजह से हमारी संख्या कम हो जाती है। Hallelujah. Hallelujah. So now in chapter 5, अब 5वें अध्याय में so miracle happened. चमत्कार हो गया। Peter was amazed. Amazed. पतरस को आश्चर्य हुआ, He was amazed. वो उसको आश्चर्य हुआ, He fell at the feet of Jesus. और वो यीशु के चरणों में गिरा। Now what he said? अब उसने क्या कहा? Now language changed. अब भाषा बदल गई। Now not master. अब उसने मालिक नहीं कहा, Now not master. अब उसने मालिक नहीं कहा, Lord. अभी उसने प्रभु कहा। That is a faith. और वही विश्वास है। Hallelujah. आमेन। When he believed in the lordship of Jesus, और जब उसने यीशु के प्रभुत्व पे विश्वास किया, verse 10 and 11 says like this, तो 10 और 11वां वचन ऐसे कहता I will है, make you a fishers of men. मैं तुम्हें मानव को पकड़ने वाला बनाऊंगा। You're understanding? Did you understand? Your faith will draw the attention of Jesus on you. और तुम्हारा जो विश्वास है उसके द्वारा यीशु का लक्ष्य तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। Because you started this life in faith, that's why you are in the church. क्योंकि तुमने इस जीवन का विश्वास में शुरुआत की, इसीलिए आप कलीसिया में हो। Hallelujah. So he will put his attention on you. और इसीलिए वो अपना लक्ष्य तुम्हारे ऊपर लगाएगा। He is always looking on the faith people. वो हमेशा विश्वास के लोगों की ओर देख रहा है। John was there. यूहन्ना था, James were there. याकूब था, Jesus didn't speak of them. और यीशु उनके बारे में उसने नहीं But कहा, he's telling to Peter only. लेकिन वो पतरस से ही कह रहा I है, will make you a fisher of men. मैं तुम्हें मानव पकड़ने वाला बनाऊंगा। Because you have a faith. क्योंकि तुम्हारे अंदर विश्वास Because है, you obeyed me. क्योंकि तुमने मेरा आज्ञा पालन You believed किया, in me. तुमने मुझ पे विश्वास I किया, will make you a fishers of men. मैं तुम्हें मानव पकड़ने वाला बनाऊंगा। आमेन, आमेन, आमेन। Hallelujah. Your faith draw the attention of Jesus towards you. और तुम्हारा विश्वास ही परमेश्वर का, यीशु का लक्ष्य तुम्हारे ओर आकर्षित करता है। Hallelujah. How much you will put your faith? जितना ज्यादा तुम तुम्हारा विश्वास How much डालते you grow हो, in faith? जितना तुम विश्वास में बढ़ते He will हो, never be quiet. वो कभी भी शांत नहीं He will speak बैठेगा। about you only. वो सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करेगा। Many will be around you. कई लोग तुम्हारे इर्द गिर्द Like John रहेंगे, and James. यूहन्ना और याकूब की Many तरह। will join you. कई लोग तुम्हारे साथ But जुड़ेंगे, when you have a faith, लेकिन जब तुम्हारे अंदर विश्वास He होगा, will speak about you. वो तुम्हारे बारे में बात He will take करेगा, your name and speak. वो तुम्हारा नाम लेके बात करेगा। That much power is your faith. उतना ज्यादा तुम्हारा विश्वास सामर्थ्यशाली है। एक दो तीन लोग आमेन बोल रहे हैं। आमेन। Hallelujah. This year, इस साल grow in faith in a such a way. तुम विश्वास में इस तरह बढ़ो He has to speak about you every day. कि उसने तुम्हारे बारे में हर एक दिन बात करना चाहिए। आमेन, आमेन। अच्छा रीति से बजाओ। ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೀರಿ, ದಿನಾಲು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ದಿನಾಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನ ಅದಾನ, ಯಾಕೋಬ ಅದಾನ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲಲ್ಲ.
ಇವನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯಾಕೆ? ಇವನೇ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕರ್ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು ಅವನಿಗೆ. ಯಾವಾಗ ದೇವರ ನಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. He will speak about you. वो तुम्हारे बारे में बात करेगा. He will never stop. वो कभी भी नहीं रुकेगा. Let this 2026 ये 2026 be a में year of faith for us. हम ये साल विश्वास का साल बन जाए. Amen. Hallelujah. Every time he will speak about you. हर एक दिन वो तुम्हारे बारे में बात Every time he करेगा. will do the miracle for you. हर एक बार वो तुम्हारे चमत्कार करेगा. Every time he will see the wonders in your life. हर एक बार तुम तुम्हारे जीवन में अद्भुतों को देखोगे. Hallelujah. Hallelujah. Don't become weak in faith. तुम विश्वास में कमजोर ना होना. Be strong in your faith. अपने विश्वास में दृढ़ बन जाओ. Discover the lordship of Jesus daily. यीशु के प्रभुत्व को रोजाना उसको आप ढूंढते रहो. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. Coming to the next reference. अब अगले वचन पे आएंगे. 5 verse 20. 5 का 20. 5 verse 20. 5 का 20. Read 5:20. He has lifted up his eyes उसने अपने आंखों को ऊपर उठाया and saw the people who are letting the sick person from above. और उसने ऊपर देखा कि वो उस बीमार व्यक्ति को ऊपर से नीचे भेज रहे थे. Hallelujah. See, wherever Jesus go, जहां कहीं यीशु जाता था 12 disciples are there. 12 शिष्य उसके साथ होते Crowd थे. is there. वहां पे समुदाय होता था. Story says like this. और कहानी ऐसे कहती है. Room is packed. और वो जो रूम था वो पूरी तरह पैक हो No चुका था. place to come inside. और अंदर आने के लिए कोई जगह नहीं थी. Hallelujah. And these faith people went and opened. और इन व्यक्तियों ने विश्वास के साथ उस छत को खोल दिया. Jesus lifted his eyes and saw. यीशु ने अपने आंखें ऊपर उठा के उनको देखा. Down there were rabbis. और नीचे वहां पे धर्मगुरु बैठे थे. Disciples were there. शिष्य बैठे थे. Crowd was there. वहां पे समुदाय था. He couldn't see. लेकिन वो उनकी ओर देख नहीं पाया. They are near. वो नजदीक बैठे But थे. he saw the faith people. लेकिन उसने विश्वास के लोगों को देखा. Hallelujah. When there is a faith in you, और जब तुम्हारे अंदर विश्वास होता है you will attract his eyes towards you. तो उसकी आंखों को तुम अपनी ओर आकर्षित कर लोगे. Hallelujah. When you are coming to the church, जब तुम चर्च आ रहे थे Sunday, come with the faith. रविवार के समय आप विश्वास के साथ Pray आइए. in the house and come with the faith. घर में प्रार्थना करके विश्वास के साथ God, आइए. today you speak to me. प्रभु तो आज मुझसे बात I believe कर. that you will speak to me. मेरा विश्वास है कि तू मुझसे बात करेगा. Definitely that day the Lord's eyes will fall on you. और जरूर उस दिन प्रभु की आंखें तुम्हारे ऊपर गिरेगी. आमीन. 1990, in the year of 1990, 1990 में there was a youth conference in Ballari. बलारी में ऐसा एक कर्नाटका. यूथ कॉन्फ्रेंस था. Okay? I just went to attend that youth conference. और मैं सिर्फ उस यूथ कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने के लिए One गया. of the big event. और वो बहुत ही बड़ा इवेंट था. This Ram Babu, Pastor Ganesh, they all were worship leaders. और उस समय पास्टर राम बाबू, गणेश वगैरह ये सारे आराधक थे. That much old it is. और उतना ज्यादा वो पुराना था. When I saw that one arrangement, और जब वो सारी व्यवस्था मैंने देखी I said, wow, what a big thing it is. और तब मैंने कहा वाह कितनी बड़ी चीज है. So while worship was going on, और जब आराधना चल रही थी that time that song was a new song. इंता वल्ले समयदुलु येसुवे निन बड़े बंदी. और उस समय ये गीत बहुत ही नया गीत था. That song touched me. उस गीत ने मुझे स्पर्श किया. They organized in a big ground. और उन्होंने बड़े ग्राउंड में वो व्यवस्था की थी. So while they all were worshiping, और जब वो सारे लोग आराधना कर रहे it थे was late evening, just getting darker. और वहां पे अंधेरा हो रहा था. वो शाम में देरी हुई थी. So I just walked out from the crowd. और उस समुदाय से सिर्फ मैं बाहर आया. I want to pray. और मुझे प्रार्थना करनी थी. So when I was moving out of the crowd, और जब मैं उस समुदाय से बाहर जा रहा था I just found a place in the corner. और मुझे एक कोने में ऐसी जगह दिखी. अर्थ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? Listen this one carefully. इसे आप सावधानी से सुनिए. So I went there and I knelt down. और उस कोने में चला गया. वहां पे घुटने पे आया And I am crying. और मैं रो रहा था. And when I was crying, और जब मैं रो रहा था by that time, उस समय तक just I said, Lord, you speak to me. और मैंने कहा प्रभु मुझसे बात कर. Lord, you speak to me. प्रभु तू मुझसे बात कर. When that word came, immediately preacher said, there is a boy who is praying here. His name is Samuel.
और जब वो मैंने कहा कि प्रभु मुझसे बात कर, और तुरंत ही उस प्रचारक ने कहा कि ऐसा एक लड़का है यहाँ पे जो प्रार्थना कर रहा है, उसका नाम सैमुअल है। When I heard that name, और जब वो नाम मैंने सुना I opened my eyes, और मैंने अपनी आंखें खोली, and when I checked myself, और जब मैंने अपने आप को चेक where किया, I knelt down, you know, और मैं कहाँ पे घुटने पे आया था मालूम where है? all the men pass urine. और जहाँ पे सारे जो पुरुष थे, जहाँ पे मूत्र विसर्जन करते थे, वहां पे मैं था, There I knelt down. और वहां पे मैं I घुटने don't पे know आया it is था। a dirty place. मैं नहीं जानता था कि वो गंदी जगह I थी, didn't get any dirty smell. मुझे कोई भी गंदा गंदा But I दुर्गंध नहीं only आया। said to the Lord like this. लेकिन मैंने प्रभु को सिर्फ This ऐसे song has कहा, spoken to me. इस प्रचारक ने मुझसे बात, No, this song has spoken to me. इस गीत ने मुझसे बात I किया want है, to pray and spend time with you. मैं प्रार्थना करके तेरे साथ समय बिताना It is a चाहता हूँ। dark cloud. ये बहुत बड़ा समुदाय Very था, night. बहुत रात थी, Don't know what is around. बाजू बाजू क्या है जानता नहीं Only था, knows want to go and pray. सिर्फ जानता था कि जाके प्रार्थना करनी है। Went alone. अकेला चला गया, And when I knelt down there, और जब मैंने वहां पे घुटने पे I said to आया, the Lord like this. मैंने प्रभु को ऐसे कहा, Lord, you have to speak to me. प्रभु तुझे मुझसे बात करनी है, Today you have to call on my name. आज तूने मेरा नाम लेना Today you है, have to speak to me. आज मुझसे तू बात When कर। I prayed, और जब मैंने प्रार्थना की, immediately preacher said like this. तुरंत ही प्रचारक ने ऐसे There is a कहा, boy praying and calling to me. His ऐसा- name is Samuel. ऐसा एक लड़का है जो मुझे प्रार्थना करके मुझे बुला रहा है, उसका नाम सैमुअल है। That was God will definitely find you. परमेश्वर जरूर तुम्हें ढूंढ निकालेगा। Hallelujah. Can we say to God like this? क्या हम परमेश्वर को ऐसा कह सकते हैं? I will grow in faith. O God. मैं विश्वास में बढ़ूंगा Both परमेश्वर। hands, both hands. दोनों हाथ ऊपर उठा के Lord, कहेंगे, I will grow in faith. प्रभु मैं विश्वास में बढ़ूंगा प्रभु, Whatever may be, जो कुछ होने दो, whatever may be, I will grow in faith. मैं विश्वास में बढ़ूंगा, I will grow in faith. मैं विश्वास में बढ़ूंगा, I will seek you with faith. मैं तुम्हें विश्वास से ढूंढूंगा, I will grow in faith. मैं विश्वास में बढ़ूंगा। Sura Rama Nagara Baba. Baba. Speak to the Lord few Thank you, minutes. Jesus। कुछ समय परमेश्वर से बात करिए, Just pour out your heart. अपने हृदय को आप पोर आउट करिए, Just speak to God. परमेश्वर से बात करिए, Speak by faith. विश्वास से बात करिए। Lord, I want to speak to you. प्रभु मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, Lord, I want to grow in you. प्रभु तुझ पे मैं बढ़ना चाहता हूँ। Lord, you are my Lord. प्रभु तू मेरा प्रभु है, Jesus, you are my Lord. यीशु तू मेरा प्रभु है, You are my Lord. तू मेरा प्रभु है। I want you to speak to me. मैं चाहता हूँ तू मुझसे बात कर, I want you to speak to me, O मैं God. चाहता हूँ तू मुझसे बात कर प्रभु। Lord, I believe in you. प्रभु मैं तुझ पे विश्वास करता I हूँ, believe in you. तुझ पे मैं विश्वास करता You हूँ are प्रभु। my
my savior. तुम मेरा बचाई करता Say हो। loudly, you are my savior. जोर से कहो, तू मेरा बचाई करता You है। are my savior. तू मेरा बचाई करता You are है। my shepherd. तू मेरा चरवा है। You are my anointed. तू मेरा अभिषिक्त है। Jesus, you are my Lord. यीशु तू मेरा प्रभु है। Shaba ba 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 ba. Sagara ba 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 ba. Sagara ba 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 ba. Sandara ra ra ba 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 ba. Sagara ba 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 ma 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 ba 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 ba. Sababa, God wants the faith people. परमेश्वर को विश्वास के लोग चाहिए। He don't want a great people. उसको कोई महान लोग नहीं He चाहिए। want a faith people. उसको विश्वास के लोग He don't चाहिए। want a wise people. उसको कोई बुद्धिमान लोग He नहीं want a faith चाहिए। people. उसको विश्वास के लोग He चाहिए। don't want a great people. उसको कोई महान लोग नहीं He चाहिए। want a faith people. उसको विश्वास के लोग Faith चाहिए। people are here. विश्वास के लोग यहाँ पे है। Then say to God, तो फिर परमेश्वर को कहो, God, you make use of my life. प्रभु मेरे जीवन का इस्तेमाल कर। Make use of my life, O God. मेरे जीवन का इस्तेमाल कर प्रभु। Make use fruitful of my life, O God. मेरे जीवन को फलवंत बना दे परमेश्वर। हो रा बा 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 बा. Shaba ba 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 ba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. This evening, इस God शाम is looking to your heart परमेश्वर आपके हृदय की ओर देख रहा है, to promote you, तुम्हें प्रमोट करने के to लिए, lift you up, तुम्हें ऊंचा उठाने के to make लिए, you useful for His kingdom. उसके राज के लिए तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए। Hallelujah. Amen, Thank you, amen. Jesus. Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हो? Hallelujah. Hallelujah. God don't want great people. परमेश्वर को कोई महान लोग नहीं चाहिए, You want a faith people. उसको विश्वास के लोग चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Like this, I have hundreds of illustrations. ऐसे मेरे सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं। Whenever I called him in faith, जब कभी मैंने विश्वास से उसे पुकारा, he has not delayed. उसने कभी भी विलंब नहीं किया। He didn't delay. उसने कभी भी विलंब नहीं किया। Hallelujah. So keep this thing in your mind. तो ये चीज आपके जहन में रखिए। Okay. Now coming to 10th chapter. अब 10वें अध्याय पे आएंगे। No? 5th chapter is over, no? 5वां अध्याय खत्म हुआ। Okay. Now coming to the 10th chapter. अब 10वां अध्याय देखेंगे। And 7th chapter also is there. 7वां भी अध्याय है। In the 7th chapter, verse 10 says like this. 7 का 10 ऐसे कहता है, Jesus talking to Simon. यीशु शिमोन के साथ बात कर रहा था। Simon called Jesus to his house. शिमोन ने यीशु को अपने घर बुलाया। Called for the dinner. उसने उसको डिनर के लिए बुलाया। But that time, लेकिन उस a समय sinful woman came. एक पापी महिला आई। She came there. वो वहां पे आई। 7 or 9? See? 7th chapter or 9th chapter? 7 में है ना जो मैं बता 7 आई थी ಇಲ್ಲ 9 ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ 9ಗೆ ಬರ್ರಿ 9 10 ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ಲೂಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹಾಂ ಇಸ್ ದೇ ರೀಡ್ ನೋಡಿದೆ 9ನಲ್ಲಿ 10 7 and like this. Sorry. No, 7 ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಂದು How did I missed? Yes, 7 ಇದಲ್ಲ 7 was Luke chapter 7 was 40 onwards you read, not 10. 7:40 onwards. Yes. 7:40 के आगे। हाँ यीशु ने हाँ उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का। That's enough. Just want to show you that is there. Okay. Here we see that Simon invited Jesus to his house और यहाँ पे हम देख सकते हैं शिमोन ने यीशु को अपने घर बुलाया for dinner. डिनर के लिए। So, but that time a woman came.
लेकिन उस समय एक महिला आई, She was a sinful woman, वो एक पापी महिला थी, came with the perfume bottle और वो सुगंधी तेल लेके आई and broke the bottle, और उसने वो बॉटल को तोड़ा wiped the feet of Jesus और यीशु के पैरों को धोया with the tears, आंसुओं से, and now wiped with her अपने बालों से उसे with the पोंछा। hairs. That is a story. वही कहानी है, Yes or no? हाँ कि नहीं? Hallelujah. You understand this much? ये आप इतना आप ಇಷ್ಟು समझ गए? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದಂತ ಕತೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ, when Jesus called the disciple, when Simon called Jesus for dinner, और जब शिमोन ने यीशु को डिनर के लिए बुलाया all 12 disciples went. तो सारे 12 शिष्य वहां पे चले गए। Why? क्यों? They had an invitation. क्योंकि उनके पास आमंत्रण था। Invitation रहे तो कैसा? आमंत्रण रहेगा तो कैसे जाते हैं? Boldly. एकदम धाड़स के साथ। हालेलुया। हमारा बचपन बहुत गरीबी, किधर तो शादी रहे तो बुलाए बिना जाते थे हम लोग। क्यों? खाना मिलता ही नहीं घर में। किनका तो शादी रहे तो बुलाने का जरूरत नहीं, जाके खाने का पहला। हालेलुया। उतना गरीबी था हमारा। हालेलुया। इन द हाउस इफ यू वांट टू हैव ए गुड फूड, घर में अगर अच्छा खाना खाना है तो फेस्टिवल आना है, तो उसके लिए उत्सव आने की जरूरत है। क्या तो फंक्शन रहे तो अच्छा खाना। That much poor we were. उतने ज्यादा हम गरीब थे। Now when they got the invitation, they went boldly. और जब उनको आमंत्रण मिला तो वो धाड़स के साथ चले गए। The courage was the invitation. और जो उनका धाड़स था वो आमंत्रण था। But this lady लेकिन ये महिला, didn't have an invitation. उसके पास कोई आमंत्रण नहीं था, कोई भी बुलाया नहीं, but gift था। लेकिन उसके हाथों में गिफ्ट था। I will give to Jesus. मैं उसे यीशु को दूंगी। Do you understand? आप समझ गए? Disciples had an invitation. शिष्यों के पास आमंत्रण था। हाथ हिलाते गया, काली हाथ हिलाते हिलाते, पुकट का खाना खाने के लिए यीशु को बुलाया, ये लोग पेट भरने का। हालेलुया। But this lady, लेकिन ये महिला, no invitation, उसके पास कोई आमंत्रण नहीं but था, has a gift. लेकिन उसके पास That उपहार means था। no invitation, इसका मतलब आमंत्रण नहीं था, has a faith. I am going to the Savior. लेकिन उसके पास ये विश्वास था कि मैं बचाईकर्ता के पास जा रही हूँ। Hallelujah. He said like this. और उसने ऐसे कहा, I will go with the faith. मैं विश्वास के साथ जाऊंगी I will go and sit at the feet of Jesus. और मैं जाके यीशु के चरणों में बैठूंगी। I will confess my sin. मैं अपने पापों की कबूली दूंगी। This is opportunity for me. और ये मेरे लिए एक मौका है। Jesus came to my town. यीशु मेरे शहर में आया है। I will not miss this opportunity. और ये मौके को मैं नहीं I गवाऊंगी। will show my faith. मैं मेरे विश्वास को दिखाऊंगी। Hallelujah. And Simon saw this और शिमोन ने देखा and said like this. और उसने ऐसे कहा, He doubted on Jesus. और उसने यीशु के ऊपर उसने शक लिया। If he was a prophet, उसने सोचा कि ये अगर नबी होता he would understood this lady is a sinful तो lady. ये पापी स्त्री है, ये पापी है करके उसके समझ में आता। Actually, Jesus is not a prophet. और यीशु सच में वो नबी नहीं था, He's a son of God. वो तो परमेश्वर का पुत्र था। You understanding? आप समझ रहे हो? But this lady understood. लेकिन ये महिला समझ I am गई, not going to the prophet. मैं नबी के पास नहीं जा रही I हूँ, am going to my Savior. मैं मेरे बचाईकर्ता के पास जा रही हूँ। And that's why Jesus said like this. और इसलिए यीशु ने ऐसे कहा, Simon, शिमोन, you didn't give me water to wash my feet, तुमने मेरे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, but she shed her tears. लेकिन उसने अपने आंसुओं को बहाया। Hallelujah. And Jesus is telling like this. और यीशु ऐसे कह रहा है, Her sins are forgiven. उसके पापों की क्षमा हो चुकी है। Wherever the gospel is preached, और जब कभी सुसमाचार बांटा जाएगा her story will be telling that तो place. उसकी कहानी बताई जाएगी। When your faith is there, और जब आपके अंदर विश्वास होता his है eyes are on you. तो उसकी आंखें तुम्हारे ऊपर होती है। आमेन। Hallelujah. हालेलुया। When you seek him with the faith, और जब उसे तुम विश्वास से ढूंढते he will हो never neglect. तो वो कभी भी उसे He दुर्लक्ष will नहीं take your करता। name. वो तुम्हारे नाम लेगा, नाम लेके बात करें. वो नाम लेके बात करेगा। Hallelujah. 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 Your faith will show, you make Jesus to speak for you. और तुम्हारा विश्वास ही यीशु को तुम्हारे बारे में बात करवाएगा। Oh,
All are disciples, all are looking one face to another face. और शिष्य एक दूसरे की ओर देख रहे थे All are just become a followers. और सारे लोग सिर्फ वो फॉलोअर्स बन गए, No faith. विश्वास नहीं। Hallelujah. In the 9th chapter, और 9वें अध्याय में Jesus took disciples for the prayer. यीशु ने शिष्यों को प्रार्थना के लिए लेके गया, ऐसा no? Took them for the prayer. उनको were प्रार्थना praying. में लेके गया, वो प्रार्थना कर रहे थे। How many were there? कितने लोग थे? यीशु के साथ ऊपर, हाँ मालूम नहीं, प्रेयर करने के लिए गए ना ऊपर, 3 लोग था। कौन कौन? पीटर, जेम्स एंड जॉन। पीटर, जेम्स एंड, कितने लोग था ऊपर? बोल सो जोर से बोलो, कितने लोग ऊपर? अभी कितने लोग नीचे? 12 में 3 गए तो 9 लोग नीचे। ओके, कितने लोग ऊपर? कितने लोग नीचे? अगर इस दुनिया में रहे तो इनका पार्टी जीतता है, ऐसा ना? इन द वर्ल्ड मीन्स किधर ज्यादा लोग है, किधर मेजॉरिटी है उधर पार्टी। दुनिया में अगर मेजॉरिटी जहाँ पे है वहीं पे जीत होगी, ऐसा ना? बट हाउ मेनी आर देयर ऑन टॉप? कितने ऊपर कितने थे? 3। हाउ मेनी डाउन? नीचे कितने थे? सो वन मैन केम देयर तो एक विद हिज सन हैज अ प्रॉब्लम। और एक व्यक्ति वहां पे आया जिसके बेटे की एक समस्या थी। He went to the 9 disciples. वहां पे 9 शिष्यों के पास चला गया, Please deliver my son. कृपया मेरे बेटे को छुटकारा दे दो। So this 9 people tried. और तब ये 9 लोगों ने कोशिश की, Nothing happened. कुछ भी नहीं हुआ। Hallelujah. 9 लोग हैं, not able to deliver one person. और 9 लोग एक व्यक्ति को भी छुटकारा नहीं दे पाए। Jesus came down. यीशु नीचे आया, The demon saw him from far. और जो दुष्ट आत्मा था वो दूर से उसे देखा, Left the child and went. और उस बच्चे को छोड़ के वो And Jesus चला said गया। like this. तब यीशु ने ऐसे कहा, Oh unbelieving generation. हे अविश्वासी पीढ़ी। But for that woman, लेकिन उस महिला के he is लिए telling like this. वो ऐसे कह रहा था, Wherever gospel is preached, her story will say. जब कभी सुसमाचार बांटा जाएगा, इसकी कहानी कही जाएगी। Did you understand? क्या आप समझ गए? Differences मालूम हुआ? आमेन। You may be attending a church if you don't have a faith. आप शायद चर्च कलीसिया आते होंगे, आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, He cannot put his eyes on you. तो वो अपनी आंखें तुम्हारे ऊपर नहीं लगा You will be सकता। simply attending the church. आप सिर्फ ऐसे ही चर्च आते Simply जाएंगे, doing so many things. ऐसे ही बहुत सी चीजें करते जाएंगे। Jesus finds the faith people. और यीशु सिर्फ विश्वास के लोगों को ढूंढता है। Hallelujah. Hallelujah. Now coming to the 10th chapter. अब 10वें अध्याय में आएंगे। Sorry, 19th chapter. 19वां अध्याय। 19th chapter verse 5. 19वां अध्याय 5वां वचन। What does it says? वो क्या कहता है? Jesus came to the spot. यीशु उस जगह पे आया। Jesus came to the spot. यीशु उस जगह पे आया, Lifted his eyes. और उसने अपनी आंखें खोली। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Zacchaeus don't know the timing, what time he will reach to this place where he climbed up on the tree. और जक्कैयास को पता नहीं था कि जिस पेड़ पे वो बैठा है उस जगह पे यीशु कब आएगा। He was waiting. वो इंतजार कर रहा था, He was waiting. वो इंतजार कर रहा था। Jesus is passing in Jericho. यीशु यरीहो पास करके जा रहा था। What is the city of Jericho? और यरीहो शहर क्या है? The city of curse. वो श्राप का शहर है। Hallelujah. Now when Jesus is walking in that city, और जब यीशु उस शहर में चल रहा था, that means curse is removed. इसका मतलब उधर का श्राप हटा दिया गया। Hallelujah. And now Jesus is walking. और अब यीशु चल रहा है। What is the purpose of Jesus? और यीशु का उद्देश्य क्या Want था? to remove the curse. वो श्राप को हटाना He is चाहता था। walking. वो चल रहा He था want to remove the curse. और वो श्राप को हटाना That is चाहता the mission था। of Jesus. वो यीशु का एक ध्येय था। While he was walking, और जब वो चल रहा when he था, came to the spot, जब उस जगह पे वो आया, something power holded him. तो कुछ सामर्थ ने उसे पकड़ा और कुछ सामर्थ ने उसके लक्ष्य को आकर्षित किया। और मैं विश्वास के बारे में सिखा रहा हूं, शैतान को ये सारे गेम जानता है। Because through the faith only you will receive the blessings. क्योंकि विश्वास के द्वारा ही तुम आशीर्वादों को पाओगे। Morning it didn't happen like this. Now it is happening. सुबह ऐसे नहीं हुआ, देखो अब भी हो रहा है। Morning was a preparation. सुबह तैयारी थी, Now you.
अब आप हो। God is looking your faith now. परमेश्वर आपके विश्वास की ओर देख रहा So है। Jesus was walking. अब यीशु चल रहा था When he came to that spot, और जब उस जगह पे वो आया, the faith of Zacchaeus has pulled Jesus towards him. तब ये जकायस के विश्वास ने उसको अपनी ओर खींच लिया। Because 19 verse 2 says like this. क्योंकि 19 का दूसरा वचन ऐसे कहता है, Zacchaeus was a rich man. जकायस एक अमीर व्यक्ति था, He is a tax collector. वो कर जमा करता था So you want to see who is Jesus. और वो देखना चाहता था कि यीशु कौन है। What is his faith? उसका विश्वास क्या था? I want to see who is Jesus. वो मैं देखना चाहता हूं कि यीशु कौन है। But he was short ले- man. लेकिन वो एक छोटा व्यक्ति That is a था, curse. उसके ऊपर श्राप था All are wealthy people. और सारे लोग अमीर लोग थे, Healthy people also. सारे लोग सेहतमंद लोग थे And he is a short. और वो छोटा था, Curse. वो उसके ऊपर श्राप था। But when Jesus came to that spot, लेकिन जब यीशु उस जगह पे आया, he cannot cross that one. तब वो उसे पार नहीं कर पाया Something is happening. और कुछ तो हो रहा था, Something is happening. कुछ तो हो रहा था। Jesus lifted his eyes. यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई Saw Zacchaeus and said like this. और जकायस को देख के ऐसे कहा, Come down, I want to come to your house. नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे घर आना Curse चाहता has हूँ। gone. और वो श्राप हट गया। The moment when the faith came, जब जिस क्षण विश्वास Curse is आया, removed. जब श्राप हटा दिया now गया, I will come to your house. अब मैं तुम्हारे घर आऊंगा। Hallelujah. You have not invited me, तुमने मुझे आमंत्रित नहीं किया but your है, faith made me to come to you. लेकिन तुम्हारे विश्वास के द्वारा मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। If you grow in faith, you know, अगर तुम विश्वास में बढ़ते हो तो God will come in search of you. परमेश्वर तुम्हें ढूंढते हुए आएगा। आमेन, आमेन, आमेन। He'll say, I will come to your house. और वो कहेगा कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। And the story says like this. और कहानी ऐसे कहती है, Zacchaeus came to the house. जकायस घर आ गया All the people were talking. और सारे लोग बात कर रहे थे। Jesus went to the sinner's house. यीशु उस पापी के घर में चला गया। But the moment when Jesus went step in their house, लेकिन जब यीशु ने जिस क्षण उनके घर में कदम sin रखा, is removed. तब पाप हटा दिया गया। Hallelujah. They were looking him as a sinner. और वो उसकी ओर पापी की तरह देख रहे थे। Zacchaeus stood up and said like this. जकायस खड़ा होकर उसने ऐसे कहा, I will give 4 times. मैं 4 गुना वापस दूंगा। What is this 4 times giving? ये 4 गुना वापस देना है क्या है मालूम है? 4 ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ರೆ ನೀ ತಿರುಗಿ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟಲ್ಲ. 4 ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಲ, ಅವನೇನಂದಾನ, ನಾನು ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿನೋ ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಂತ. ಹೌದು, ಗುಡ್ ರೆವಲೇಷನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಮನಿ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್. उसके बाद ನೀ ಹೇಳಿದ ಚಲೋನೆ, ಅದನ್ನು ಚಲೋ ಐತೆ. उसके ज्यादा पैसे थे इसके लिए वो 4 गुना देना चाहता था। ये बहन ने कहा Why है, he want to give 4 times? वो 4 गुना क्यों देना चाहता था? कोई तो बोलो। सिस्टर बोला ज़्यादा पैसा है, पैसा वाले नहीं देते, गरीब देते हैं। पैसा वाला पूरा अकाउंट करके रखता है, दूध वालों को कितना देना है, करंट बिल को कितना देना है, बच्चों को फीस को क्या देना है, पेट्रोल को कितना डालना है, मेरे को कितना बचता है, पास्टर को कितना देना है, पैसा लोग कैलकुलेशन करता है। ಬಡ ಜನರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತಂದು ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. 4 ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ವೈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ 4 times है? बोलो क्यों देना है 4 टाइम? 4 बार क्यों देना है? एक बार ले तो एक बार देने का. 1 time taken, 1 time is give. एक बार दिया तो एक बार वापस देना। 4 time giving, 4 गुना वापस देना, it is only given by the Levites. ये सिर्फ लेवी लोग देते थे बाइबल में. बाइबल में। 4 गुना कौन देते हैं मालूम क्या? लेवीज. So Levites is to give to God 4 times. और जो लेवी लोग थे वो परमेश्वर को 4 गुना देते थे। So now Zacchaeus, when Jesus came, the high priest came to his house. और जब यीशु जो महायाजक है जब उसके घर आया, You understanding? आप Who is समझते हैं Jesus? यीशु कौन है? Jesus high priest. वो महायाजक है। ऐसा ना? Hebrew chapter 10 verse 19 says like this. इब्रू 10 का 19 ऐसे कहता है, He tore his own body उसने अपने खुद के शरीर को and फाड़ा made a way for us through the throne और of हमारे grace. लिए उस थ्रोन ऑफ ग्रेस के लिए मार्ग बनाया।
Amen. Now Jesus, when he came to his house, और अब यीशु जब उसके घर आया the great priest came. तो जो महान याजक आया था, Zacchaeus' faith increased. जक्कैस का विश्वास बढ़ Before गया। Jesus coming, यीशु आने के पहले his faith was like this. उसका विश्वास ऐसे I था, want to see who is Jesus. मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि यीशु कौन है, That is enough. उतना काफी है, एक बार देख लूंगा। एक बार देख लूंगा। Hallelujah. Some people will be like this, no? कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक बार अमिताभ बच्चन को देखा ना मरा तो भी चलता है। ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ದೇಖಿ ಮರೋದು क्या होएगा? ಹಂಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಲ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಕಣ್ಣಾರು ನೋಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಸತ್ರ ನಡೀತೈತಿ. ಅವ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೀ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕನಸುಗಳು ನಾವು. Zacchaeus said like that. जक्कैस ने ऐसे I कहा, want to see Jesus. मुझे यीशु को देखना है। That was his faith. वही उसका विश्वास But था। when Jesus came to his house, लेकिन जब यीशु उसके घर आया, it is not about seeing. वो देखने के बारे में नहीं It is रहा, about giving. वो देने के बारे में हो गया। आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Jesus didn't preach there. यीशु ने प्रचार नहीं किया, Jesus didn't tell anything. यीशु ने कुछ नहीं He said कहा। like this. The उसने great high priest came to my house. उसने ऐसे कहा कि वो महायाजक मेरे घर आया है, Now I will bless 4 times. अब मैं 4 गुना आशीर्वाद करूंगा। I will bless 4 times. मैं अब 4 गुना आशीर्वाद करूंगा। Immediately Jesus says, तुरंत ही यीशु कहता है, now he is a son of Abraham. और अब ये अब्राहम का पुत्र है। Hallelujah. हालेलुया। हाँ, claps मारे तो अच्छा मार रहे थे। Your faith makes Jesus to speak for you. तुम्हारा विश्वास ही यीशु को तुम्हारे बारे में बात करने के लिए मजबूर करता है। Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हो? Hallelujah. हालेलुया। We have to grow in faith. तुम्हें विश्वास में बढ़ना है, Hallelujah. Then Jesus will speak about you. फिर यीशु तुम्हारे बारे में बात 4 करेगा। ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹೆಚ್ಚು ರೊಕ್ಕದವಂತಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಂಗೆ ತಿಳಿದಿರಿ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಡ ಜನರು ಕೊಡೋದೆ. ಬಡ ಜನರು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚ. ಈ ಶ್ರೀಮಂತರೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬೋನಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಫ್ರಿಜ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಗಾಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಬೇರೆ. ಬಡ ಜನರೇ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡೋದೆ. हालेलुया. हालेलुया। लास्ट रेफरेंस, आखिरी वचन ಹೇಳಲೋ ಬೇಡೋ? ನೀವು ಅಟ್ಟಂದ್ರಿ ಇವರು. कैन आई टेल यू? आगे जाएंगे, कभी तलक जाएंगे. खाली हंस रही देखो, बोले तो तू ही निर्णय करो. बहुत होशियार है तुम लोग. ना बोले तो पास्टर को गुस्सा आएगा, उसलिए हंसेंगे. हाँ, कन्नड़ में एक बात है, ಮಾತಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಕ್ಕವ್ರು ನಂಬಲೇಬಾರ್ದತ್ತ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಐತೆ ಹಂಗೆ. ಮಾತಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ನಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ನಂಬಲೇಬಾರ್ದಂತ. ಹಂಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡ ನೀವು ನಕ್ಕಿರಿ ನೋಡಿ. ಏನದರ ಅರ್ಥ? ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ, ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಐತೆ, ಅದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21, chapter 21, verse 2. 21वां अध्याय दूसरा वचन, 1 and 2. पहला और दूसरा वचन। Jesus went to the garden of olives, और and he जैतून saw के बाग में he यीशु sat गया opposite to the temple of God, और परमेश्वर के मंदिर के सामने वो खड़ा रहा, and he was watching all the people who were dropping the offerings. और वो देख रहा था कि सारे लोग जो अर्पण दे रहे थे। ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರ್ರಿ, ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಯೇಸು ನೋಡ್ದ. Be careful when you're putting the offering. और सावधानी से रहिए, जब आप अर्पण डालते हो Your pastor will not see, तो तुम्हारे पास्टर उसे नहीं देखेंगे, but Jesus will see. लेकिन यीशु देखता है। आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ನೋಟ್ ಬಂತ್ರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಚರ್ಚ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ our church people were counting the offerings and all, one note has come. और हाल ही में हमारे चर्च के लोग ऑफरिंग गिन रहे थे, तभी एक ऐसी नोट आई। ಇಟ್ಟು ಹಳೆ ನೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ನೋಟ್. वो बहुत ही पुरानी नोट थी। ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ₹1, ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ₹2. ಅದನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಫರಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಯಾರ. one side ₹1, another side ₹2. जोड़ के ऑफरिंग में डाला है.
ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಇತ್ತಾಗ ಚರ್ಚ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಭುಗೆ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರೇಮ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಏನು ದೊಡ್ಡದು ಕೊಟ್ಟಾರ ದೇವರಿಗೆ. हालेलुया. वी कैन नॉट यूज दैट. हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते. फ्रेम बना के घर में रखने का ये फेथ आदमी दिया है करके फ्रेम करके लगा के साल में एक बार हार डालने का वो कौन सा दिन जन्म हुआ करके व्हाट ए ट्रिकी पीपल. और कितने ट्रिकी लोग हैं. बी केयरफुल. सावधानी से रहिए. व्हेन यू आर डूइंग पुटिंग ऑफरिंग, जब आप अर्पण डालते हैं, पास्टर विल नॉट सी, तो पास्टर उसे नहीं देखते. नोबडी विल सी, कोई नहीं देखता. बट द आईज ऑफ जीसस विल सी यू. लेकिन यीशु की आंखें तुम्हारी ओर देखेंगी. हालेलुया. हालेलुया. ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ಕಡೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಥೆಗಳದಾವ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪಾಕಿಟ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಐ ನೋ. ಯಾರಾದ್ರೆ ಅಂಗ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ ಧನ್ಯರಾದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ಪಾಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಟೊಬಿಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. If anybody is putting the offering like this only, अगर कोई भी ऐसे अगर ऑफरिंग डाल रहा है तो naturally और नैसर्गिक रीति से really blessed. वो सच में आशीर्वादित है. कवर में डाला बोला तो किनको मालूम नहीं होना है, उतना चैप्टर गिरी करेगा. हालेलुया. That is my experience. ये मेरा अनुभव है. So some people just they'll put like this. और कुछ लोग ऐसे ही डाल देते हैं. There are some faith people, they do. और कुछ ऐसे विश्वास के लोग हैं वो भी करते हैं. But you know when they bring the cover, लेकिन जब वो कवर लेके आते हैं, पसाना रहता है उसमें. हाँ, काली कवर भी हुआ हमारे चर्च में, बॉम्बे चर्च में काली कवर ही डालते. बोले तो उल्टा तुम गिन लो. हमको गिनने के लिए नहीं आता है, तुम गिन लो. हालेलुया. 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 पहला फर्स्ट दे विल प्रे लाइक दिस. पहले दिन हम ऐसी प्रार्थना करते हैं. पास्टर यू प्ले फॉर मी, वी हैव टू सी द ब्लेसिंग्स. पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे आशीर्वाद देखने हैं. लेट माय चिल्ड्रन पास ऑल द सब्जेक्ट पास्टर. मेरे बच्चे सारे सब्जेक्ट में पास हो जाए पास्टर. सो फ्रॉम एसएसएलसी टू डिग्री पास्टर प्रेयर करते रहेगा. तो 10वीं से डिग्री तक पास्टर प्रार्थना करते रहते हैं. आफ्टर डिग्री दे विल गेट द जॉब. डिग्री होने के बाद उनको जॉब मिलता है. दे विल से लाइक दिस, पास्टर वो ऐसा कहेंगे, पास्टर इफ आई गेट द जॉब, अगर मुझे जॉब मिला तो मांगो क्या लाना है, क्या लाने का है मांगो, आई विल गिव इट. मैं लाऊंगा. हालेलुया. आफ्टर गेटिंग द जॉब, और जॉब मिलने के बाद इसको ढूंढना है किधर है करके. हालेलुया. Don't do this chapter गिरी with God. ये परमेश्वर के साथ ये होशियारी मत करिए. You are in loss. तुम फिर उसमें नुकसान में हो. If you do with the faith, अगर तुम विश्वास के साथ करते His हो eyes are on you. तो उसकी आंखें तुम्हारे ऊपर है. आमेन. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. All rich people came and put their offering. और सारे जो अमीर लोग हैं उन्होंने आके अपने अर्पण डाले. ये poor widow एक गरीब विधवा had only 2 coins. उसके पास सिर्फ 2 कॉइन थे. She came boldly. वो धाड़स के साथ आई. She came and dropped in the box. और उसने उसे उस बॉक्स में डाल दिया. Jesus sought his disciple and said, यीशु ने अपने शिष्यों की ओर देख के ऐसे कहा, Can you see all the rich people? क्या तुम सारे अमीर लोगों को देख सकते हो? But this lady लेकिन ये जो महिला है had the faith. उसके अंदर विश्वास था. Hallelujah. हालेलुया. His eyes are on you. उसकी आंखें तुम्हारे ऊपर है. Deceive anybody in life. जीवन में किसी को भी धोखा दो, Don't deceive the church of God. लेकिन परमेश्वर के कलीसिया को कभी धोखा मत देना. Because it will bring a loss to your life. क्योंकि वो आपके जीवन में नुकसान लेके आएगा. People don't want to be faithful in giving. लोग देने में विश्वास योग्यता से नहीं रहना चाहते, But they will go to the hospital. लेकिन वो हॉस्पिटल जाते हैं. Doctor टॉर्च लगाएगा. डॉक्टर टॉर्च लगाता है. He will say open your tongue. बोलेगा. वो ऐसा ऐसा मारेगा, कुछ भी बात नहीं करेगा, वो लिखते रहेगा. Then show your nose. टॉर्च मारेगा, कुछ भी नहीं बात करेगा, लिखेगा. Eyes next. Yes. Show your eyes बोलेगा, टॉर्च मारेगा, फिर लिखेगा. खाली लिखते रहेगा, उधर जाके ले लो बोलेगा. हालेलुया. उधर जाके बिल भरो 3000 रुपये.
मुंह बंद करके पे करके आएगा। हालेलुया। मेडिकल शॉप जाएगा, उधर 5,000 का दवा लेकर आएगा, 1 महीना का आएगा, कुछ भी रोग कम नहीं होएगा। और जो डॉक्टर बोलता है वही टाइम पे खाएगा, सुबह खाली पेट में खाएगा, नाश्ता करके खाना है, नाश्ता किया ना डब्बा ढूंढते रहेगा, किधर है डब्बा। आई वेंट टू वन हाउस और मैं एक घर चला गया एंड वी ऑल वर ईटिंग फूड। और हम सब लोग खाना खा रहे थे। व्हाइल ईटिंग फूड नो, वाइफ केम विथ वन डब्बा और खाना खाते समय पत्नी एक डब्बा लेके आई एंड पुट इन फ्रंट ऑफ हस्बैंड। और पति के सामने रखा। उसमें डिपार्टमेंट है, देयर इज अ डिपार्टमेंट्स इन दैट। और वो डब्बे में ऐसे और डब्बे है। आफ्टर गेटिंग अप, और उठने के बाद फर्स्ट यू हैव टू टेक वन टैबलेट। पहले तुम्हें एक लेना है, दांत घस के दांत घसना है, दूसरा लेने का। ब्रेकफास्ट में दूसरा लेने का। वो डिपार्टमेंट बनाया, दे मेड ए डिपार्टमेंट। और उन्होंने वैसे ऐसे कंपार्टमेंट्स बनाए हैं। एंड इतना फेथ डॉक्टर के ऊपर, और डॉक्टर के ऊपर इतना विश्वास होता है, 1 मिनट भी लेट नहीं करने का, वही टाइम पे खाने का। मगर प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। They don't have a faith the God who gives a life. और जो परमेश्वर जीवन देता है उसके ऊपर उनका विश्वास नहीं है। Hallelujah. Your faith will make God to bless you. और तुम्हारा विश्वास ही परमेश्वर को तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद दिलवाएगा। Don't bless the doctor, bless the church of God. डॉक्टर को आशीर्वाद मत करिए, परमेश्वर के कलीसिया को आशीर्वाद करिए। Hallelujah. Don't bless the medical shop, bless the church of जो God. मेडिकल शॉप है उसे आशीर्वाद मत करिए, परमेश्वर के कलीसिया को आशीर्वाद करिए। Hallelujah. I am 57 years old. मैं 57 साल का हूँ। No sicknesses. मुझे कोई बीमारी नहीं है। Why? क्यों? I never. There was a time I used to pay the tithes. और ऐसा समय था जब मैं दशमांश पे करता There was था। a time I used to pay 20%. और ऐसा समय था जब मैं 20% पे There was a करता time था। I used to pay 40%. ऐसा समय था जब मैं 40% देता Now what था। I will do, you know? अब मैं क्या करता हूं God, मालूम है? Only 10% is enough for me. Everything you take. और 10% मेरे लिए काफी है, बाकी सारा तू ले ले। Everything you take. सब कुछ तू ले ले। Everything be yours. और सब कुछ तेरा है। I will not pay to the doctor. मैं डॉक्टर को नहीं देता। I will not go and open my tongue before him. Like that. मैं जाके किसी के सामने अपनी जुबान He नहीं sees our खोलता। heart. हाँ, वो अपने हृदय को Let देखता anybody है। come to the poor people in the church. कलीसिया में कोई भी गरीब व्यक्ति आने दो, I will never send them like that. मैं उनको वैसे ही कभी नहीं Any भेजता। helpless come in the church. कोई असहाय कलीसिया Any में आने दो, debtors come in the church. कोई विधवा कलीसिया में आने दो, Any debtors come in the कोई church. कर्ज बाजारी I चर्च में आने maximum दो। will try to help them. और मैं ज्यादा से ज्यादा उनको मदद करने की कोशिश करता Helping हूँ। for the kingdom of God. परमेश्वर के राज के लिए मदद करता Helping हूँ, for the church. कलीसिया के लिए मदद करता Counting हूँ, all money belongs to God. और सारे पैसे परमेश्वर के ऐसे मैं गिनती करता हूँ। By giving your 10%, God will not become rich. आपके 10% देने से परमेश्वर अमीर नहीं बनेगा। By giving 10%, you will receive the favor of God. 10% देने से आप परमेश्वर से कृपा दृष्टि को पाओगे। थोड़ा लोगों का ऐसा आइडिया रहता है, ओ हम लोग 10% दिया तो हमारा पास्टर बहुत रिच होएगा। हाँ, इतना लोग दे रहा है, हमारा पास्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। That is a foolishness. वो मूर्खता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी देखेंगे संडे क्या करते हैं तुम लोग। हालेलुया। God will see your faith. परमेश्वर आपके विश्वास को देखेगा। Then a time will come, ऐसा समय आएगा, you and your children will enjoy the favor of God. तुम और तुम्हारे बच्चे परमेश्वर के कृपा दृष्टि का आनंद उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। I went to a meeting और मैं एक प्रार्थना सभा में गया in Mangalore. मैंगलोर में। So I was praying for the people in the end. और वहां पे अंत में मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था। One man came and stand and looking me only. और एक व्यक्ति आके खड़ा रह के वो मेरी ओर ही देख रहा था। Torn clothes, उसके कपड़े फटे थे looking me, staring at me only. और सिर्फ मेरी ओर देख रहा 2 था। times I called him, come I'll pray. और 2 बार मैंने बुलाया, मैं प्रार्थना करता हूँ, आ जाओ He करके। didn't come. वो नहीं आया। He see me, he see pastor. He और see. वो मेरी ओर देखता, अपने पास्टर की ओर देखता। So when pastor turned like that, और जब पास्टर वहां से चले गए, he straightly came and prayed. वो सीधा आके मेरे सामने खड़ा रहा प्रार्थना करवाने के लिए। And when I prayed, और जब मैंने प्रार्थना की, while praying, no, he pushed some money in my hand. और प्रार्थना करते समय कुछ पैसे उसने मेरे हाथों में डाले। So I put in my pocket. और तब मैंने मेरे पॉकेट में रखे। Forgot. भूल गया।
So because he just pushed the offering in my hand. क्योंकि सिर्फ उसने मेरे हाथों में पैसे ऑफरिंग No दिया, cover. उसको कोई कवर नहीं था Only pushed some money. और सिर्फ कुछ पैसे I दिए put inside मैंने अंदर डाल दिए and went back and I changed my dress and I was coming back to Sankeshwar. और जाके मैंने अपने कपड़े बदले और मैं संकेश्वर आ रहा था While praying, प्रार्थना करते I समय। was lying down and praying. और जब मैं प्रार्थना कर रहा Thank था you ऐसे गिर God for के, using me in this meeting. धन्यवाद प्रभु इस प्रार्थना सभा में मेरा इस्तेमाल किया उसके Lord, you लिए। bless that pastor who gave me a very big offering. लॉर्ड उस पास्टर को आशीर्वाद कर जिसने मुझे अच्छा ऑफरिंग दिया। So this is all I was thanking. और ये सारी चीजें मैं धन्यवाद दे रहा Suddenly the था। Spirit of God said, अचानक परमेश्वर की आत्मा ने ऐसे कहा, that poor man came and gave some money. उस Where are गरीब they? गरीब व्यक्ति ने आके कुछ पैसे दिए, वो कहाँ है? I said, Lord, it is there in another dress I put there. और It is मैंने in the कहा प्रभु briefcase." और एक ड्रेस में है, उसमें डाले, उस सूटकेस में The है। Lord said, प्रभु ने कहा now you open that. अब उसे खोलो, Now you open and see. अब उसे खोल के देखो। So I opened and I removed. और तब मैंने खोला और मैंने अंदर से देखा, As I am removing, जैसे मैंने निकाल रहा first था, I opened पहले मैंने खोला 2000 note. 2000 का Second नोट, I opened दूसरा खोला 2000 note. 2000, Third I opened तीसरा खोला 2000 note. 2000 25 2000 notes. और ऐसे 25 2000 की नोट थी। Hallelujah. हालेलुया। पास्टर इतना बड़ा कवर दिया, पास्टर ने इतना बड़ा कवर दिया, कैलकुलेशन किया, गिनती किया, गिनती किया, कैलकुलेशन। सैम पास्टर को संकेश्वर से मैंगलोर टिकट कितना होता है, 3 दिन प्रीच किया है, ऑफरिंग कितना होता है, उतना ही था। दैट दिस पुअर मैन लेकिन ये गरीब व्यक्ति ने गिव विद द फेथ। उसने विश्वास से दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आफ्टर 10 years 10 साल के बाद I went again to that church. मैं वापस उस कलीसिया गया This poor man और ये जो गरीब व्यक्ति था became a rich man, वो बहुत ही अमीर बन गया, totally changed. वो बहुत ही बदला हुआ था। Now he came in the 4-wheeler. अब वो 4-व्हीलर में आया Hallelujah. He's telling like this. और वो ऐसे कह रहा था, Pastor, that day when I gave this offering to you, पास्टर उस दिन जब ये ऑफरिंग मैंने दिया, my all loans were cleared. मेरे सारे कर्जे थे वो God has blessed साफ me हो now. गए। परमेश्वर ने आप मुझे आशीर्वाद किया है। Come, I will take you for the treat. आओ मैं आपको खाने पे ले जाता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Do you want God should bless you? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे? Do you want God should bless you in 2026? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको 2026 में आशीर्वाद करे? How many believe that? कितने लोग ये विश्वास How करते many हैं? desire that? कितने लोगों की This ऐसी इच्छा है? 2025 should be a blessing for you. 2026 आपके लिए आशीर्वाद होना चाहिए। This Sunday, तो ये रविवार come with your faith offering. तुम्हारे विश्वास के अर्पणों को लेके आइए। Faith offering. विश्वास के अर्पणों को Not लेके, regular offering है। जो हमेशा लाते हो वो ऑफरिंग नहीं। Regular offering कैसा? हमेशा लाते ऑफरिंग वो 10 कैसा? साल बिलीवर्स 10 ರೂಪಾಯಿ डालने का, 10 ವರ್ಷದ ಬಿಲಿವರ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕೋದು, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಆ ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ 10 50 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮುರಿಯೋದ, ನೀ ಹತ್ತಾಕ ನೀ ಹತ್ತಾಕ ನೀ ಹತ್ತಾಕ, ಈ 10 ಆಗಿ 10 ಹೋಗ್ತಾರ ಅವ್ರು, ಏನು ಅನುಗ್ರಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. You want to grow in faith? क्या आप विश्वास में बढ़ना चाहते हैं? 2026 you want the blessings? 2026 में आपको आशीर्वाद चाहिए? How much blessings? कितने आशीर्वाद चाहिए? कितना चाहिए? इतना इतना कितना चाहिए? ऐसा नहीं बोलने का, ऐसा घूमने का, सब भी चाहिए. Pastor V.A. Thambi, a great apostles of our nation, says like this. पास्टर वीए तंबी इस देश के बड़े ऐसे प्रेरित वो ऐसा कहते थे, He is a great giver, वो बहुत ही अच्छा देने वाले व्यक्ति very थे, great giver he is. बहुत ही महान देने वाले व्यक्ति He थे। says like this, वो ऐसा कहते हैं, when we give to God, जब हम परमेश्वर को देते हैं we take a mug and pour water. तो हम एक मग को लेके ऐसे पानी डालते हैं, When we want to receive from God, और जब हम परमेश्वर से पाना चाहते हैं बकेट लेके जाते हैं. तो हम उस बकेट को लेके जाते हैं। Hallelujah. This Pastor V.A. Thambi said like this. और ये पास्टर वीए तंबी इन्होंने ऐसे कहा, One day he went to a widow's house. और एक दिन वो विधवा के घर चले गए, Widow prepared a food. और विधवा ने खाना बनाया That था, was the last meal. वो आखिरी उसका मील था, आखिरी खाना था। Pastor Thambi realized that. पास्टर तंबी को पता चला, And that day, the offering was
₹2.90. This was 1970. और 1970 में उस दिन का जो अर्पण था वो 2 रुपये 90 पैसा था। Pastor Thambi took that offering and gave to that widow. और पास्टर तंबी ने वो अर्पण लिया और वो उस महिला को विधवा को दे दिया। Now he is walking and going और to अब his वो village. चल के अपने गांव जा रहे थे। 16 kilometers. 16 किलोमीटर था, He has to walk and go. उसको चल के जाना पड़ा। He walked and went. After few minutes, he said he sat in near bus stand, और वो चलते चलते जाके बस स्टैंड के पास जाके बैठ गए thinking that I will go up later on. और उन्होंने सोचा कि अभी मैं थोड़ी देर के बाद जाता Suddenly, हूँ। bus came and stopped because he is sitting there. और अचानक बस आके वहां पे रुकी क्योंकि वो वहां पे बैठे थे, But he cannot go inside. लेकिन वो अंदर नहीं जा सकते। No money. पैसे ही नहीं थे। He was the bus fellow waited and he was moving. और बस का व्यक्ति वो इंतजार किया और जा रहा था। Somebody called from the bus. और अचानक किसी ने बस से बुलाया, Hey Thambi, why you are sitting here? तंबी क्यों बैठे हो? He stopped the bus and came and took him और and made him to sit there. बस रोका और उनको हाथों से पकड़ के ऊपर जाके He बिठाया took the ticket and both of went. और उन्होंने टिकट निकाला और दोनों चले गए। Story over there. यहाँ पे कहानी खत्म हुई। After 30 years, और 30 साल के बाद Pastor Thambi went to the same village to Pastor open Thambi- up a church inauguration. पास्टर तंबी उसी गांव में चर्च को एक उद्घाटन करने के लिए चले गए। So when he was preaching, और जब वो प्रचार कर रहे थे, one old lady is coming with two young children. और एक वृद्ध महिला दो ऐसे जवान बच्चों को लेके आ रही थी। She said, I want to meet Pastor Thambi. और उसने कहा कि मुझे पास्टर तंबी को मिलना है। Organizer said, ऑर्गेनाइजर ने कहा no, you cannot meet him. नहीं आप उसे मिल नहीं She सकते। said, I want to meet him. उन्होंने कहा कि नहीं मुझे मिलना है। For 2 minutes, 2 मिनट के लिए they brought her. वो उसे लेके आए She became very old. और वो बहुत ही वृद्ध बनी थी। Pastor Thambi saw her. पास्टर तंबी ने उन्हें देखा, What do you want? क्या तुम्हें चाहिए? She said like this, उसने ऐसे कहा, look into my eyes. मेरे आंखों में देखो, Look who I am. मैं कौन हूँ देखो। Thambi said, I don't know who you are. और तंबी ने कहा कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो। She said like this, उसने ऐसे कहा, 30 years back, 30 साल पहले you came to my house. आप मेरे घर आए थे। After eating food, खाना खाने के बाद you gave me ₹2.90. आपने मुझे 2 रुपए 90 पैसे दिए। That time I was starving. और उस समय मैं भूखी थी। After you go out, no food for us. आप जाने के बाद हमारे पास कोई खाना नहीं था। Your money I took and I started to live. और आपके पैसे लेके मैं जीना मैंने शुरू किया। today, लेकिन आज All my children are in abroad. और सारे मेरे बच्चे परदेश में हैं। We have constructed this house. हमने this घर बांधा church, है। this church. ये चर्च हमने बांधा है। Now we only told to call you. और अभी हमने ही कहा था कि आपको बुलाया जाए। Now this is the money I kept for you. और ये पैसे मैंने अभी आपके लिए रखे हैं। ₹1,000 bundle he put in Thambi's hand. और 1000 रुपए का ऐसा बंडल उन्होंने उस पास्टर तंबी के हाथ में रखा। God is not a debtor. परमेश्वर कर्ज बाजारी नहीं है। God is not a debtor. परमेश्वर कोई कर्जा नहीं He is रखता। not a beggar. वो कोई भिखारी नहीं है। He don't want your money. वो तुम्हारे पैसे नहीं चाहता। He want your faith money. वो तुम्हारे विश्वास के पैसे को चाहता है। The Lord is telling today, परमेश्वर आज कह रहा है, this 2026, ये 2026 He want to bless each and every one. वो तुम में से हर एक को आशीर्वाद He करना want to चाहता है। deliver you from your sickness. तुम्हारे बीमारियों से वो तुम्हें He want to छुटकारा deliver देना you from the चाहता है। curse. तुम्हारे श्राप से तुम्हें He want छुटकारा to देना deliver you from चाहता all है। your debts. तुम्हारे सारे कर्जों से वो तुम्हें छुटकारा देना चाहता है। Rise up in your faith. तुम्हारे विश्वास में बढ़ो। Say to the Lord like this, प्रभु को ऐसे कहो, I will bless you with my faith. मैं मेरे विश्वास से तुम्हें आशीर्वाद करूंगा। Close your eyes. अपनी आंखें बंद करो। Close your eyes. अपनी आंखें बंद This करो। coming Sunday, ये आने वाला रविवार a test for your faith. तुम्हारे विश्वास का एक ये परीक्षा है। You want that Jesus should see you? तुम चाहते हो कि यीशु तुम्हें देखे? You want that Jesus I should see you? तुम चाहते हो क्या यीशु की आंखें तुम्हें देखे? Such people stand on your feet. तो ऐसे लोग अपने पैर के ऊपर खड़े हो जाए।